गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे, सब बढ़िया, गुड, वेरी गुड। आज हम आपके चैप्टर नंबर 7 का एक प्ले पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। यू आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानें कि व्हाट इज प्ले। उसके बाद में इस प्ले की यानी कि इस स्टोरी की मैं एक छोटी सी समरी आपको बताऊंगा, एंड देन आई एक्सप्लेन द एंटायर प्ले, द एंटायर स्टोरी टू यू, ठीक है। ये प्ले के फॉर्म में है ये स्टोरी। प्ले क्या होता है? एक तो प्ले मतलब आप जानते हैं खेलना, प्ले वो होता है, ठीक है ना। प्ले एक नाउन भी होता है। प्ले क्या होता है असल में? प्ले एक पीस ऑफ राइटिंग होती है, एक लिटरेचर का एक हिस्सा होता है जिसके कैरेक्टर को हम टेलीविज़न पे या रेडियो पे या थिएटर में, सिनेमा हॉल में हम दिखाते हैं, ठीक है ना। इट्स अ प्ले इज अ पीस ऑफ राइटिंग। अ प्ले इज अ पीस ऑफ राइटिंग। प्ले इज अ पीस ऑफ राइटिंग performed on TV, on the radio, or in a theater. थिएटर में, रेडियो पे, टेलीविज़न पे किसी राइटिंग का, किसी स्टोरी के पार्ट को प्ले करना, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम प्ले। किसी स्टोरी को प्रोजेक्ट करना, किसी स्टोरी को दिखाना कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है ना, उसे कहते हैं प्ले। इस प्ले में भी आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि कुछ लोगों के नाम मिलेंगे जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें दिखाया गया है। बेसिकली आप लोगों ने नाटक देखा होगा ना, नाटक खेला जाता है गाँव में, ठीक है ना। नाटक जब खेली जाती है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर सपोज रामायण की अगर नाटक बनाई जाएगी तो उस प्ले में, उस नाटक में कौन कौन होंगे कैरेक्टर? हनुमान जी होंगे, राम जी होंगे, लक्ष्मण जी होंगे, सीता जी होंगी, रावण होगा, ये सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इस प्ले में भी, रिमोट कंट्रोल किट प्ले में भी, यानी कि ये चैप्टर का नाम है और एक प्ले है, इस प्ले में आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ इंडिविजुअल्स मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ बिफोर आई get deep into the the play story, let me give you a brief summary to what exactly this entire play is all about. So this play is about a boy named Tony. There's a boy whose name is Tony, and the entire play, entire story is based on the boy Tony. Tony is a naughty boy. Tony lives with his father, with his mother, and his one sister. The name of the sister is Daisy. The name of the sister is Daisy. So Daisy is sister and Tony is brother. Tony does not listen to his mother's words. Tony's mother is always very upset with Tony. Why Tony does not do all his activities on time? Why does not he listen to the adults in the house? Why doesn't Tony does his breakfast on time? Why doesn't Tony do this? Why doesn't Tony do that? Tony's mother is always upset for Tony's activities. She's always upset with Tony. So now what exactly happens that one day Tony by mistake does something strange, does something different, that changed him into a remote control kit. That means Tony is transformed into a remote controlled kit. Now what happens? How does this happen? This play is all about that. How Tony becomes a remote control kit from a human being kit. From a human being kit to a remote control kit. This play is all about that. It's a very funny play. So without further delay, let's read and understand how Tony, became a remote control kit. Okay. So first of all, let's start. Keep your books before you.
मैं जब पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ आप अपने फिंगर्स को सेंटेंस पे आप मूव कराते रहें, सेंटेंस के नीचे आप मूव कराते रहें ताकि आपको समझ में आए, खुद से भी समझ में आए. So starter is, what is remote control? And in every house there's television set. So wherever there is television, there's remote control. So we all know what is remote control. Remote control is a device that allows you to operate a television or machine from a distance. In order to change channels, you do not have to touch the television screen or the buttons of the television of the television. You can be at a distance and you can change the channels. You can increase the volume, you can decrease the volume, you can switch off the television with the help of a remote control. So remote control is a device that allows you to operate a television from a distance itself. You don't have to be physically, you don't need to physically touch the television buttons in order to change the channel or do anything with the television. Now suppose your partner is a robot and suppose your partner, one of your friends, any friend, suppose your friend is a robot and the remote control is in your hand. You know what is the robot? Robot is a mechanical device which is controlled by the remote. You must have watched the movie Robot, in which Rajnikant played the role of the Chitti. So Chitti was a robot. So now, when your partner is a robot and you have remote control in your hand, so now the question is, can mention some of the funny things you would make your partner do by using remote control. If your partner is a robot and you have a remote to control the activities of your partner, which is in the form of a robot, what are the funny things you will ask or you will control that robot, which is your friend, to do? So now you wrote down, you just write down those funny things that you will ask your robotic partner to do. Now get set. Now we are going to learn the play. So here you will read the story of a little boy who by mistake swallows the microchip of a remote control. You know what is microchip? There's a chip inside every remote control. That chip helps operate the remote. हर रिमोट कंट्रोल के अंदर एक चिप होता है, वही चिप मदद करती है रिमोट कंट्रोल को एक्टिव करने में, फंक्शन करने में. सो एक दिन बाय मिस्टेक एक बच्चा होता है जिसने एक रिमोट कंट्रोल के अंदर का जो माइक्रो चिप होता है, छोटा सा चिप, उसने उसको स्वेलो कर लिया. स्वेलो मतलब घोंट गया, वो खा गया. द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्ले. ये जो स्टोरी है एक प्ले के फॉर्म में है, एक नाटक के फॉर्म में है, जिसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे. Read and find what happens to the little boy. Now we are going to learn what happens to the little boy whose name is Tony. What happens to Tony when he swallows the microchip of the remote control? How does he behave? What changes takes place in his behavior, in his activities, and how the father and the mother and the sister react when Tony swallows the microchip. We are going to learn about that. So scene 1. And now in every play there are scenes. जैसे आप देखते हो ना, ये सीन, ये फिल्म का ये सीन बहुत अच्छा था, वो सीन हुआ था. तो सीन क्या होता है, एक टेक में जो एक परफॉर्मेंस होती है, एक टेक में जो एक परफॉर्मेंस होती है उसे सीन कहा जाता है. अब ये सीन क्या है? सीन फर्स्ट सीन आप देखिए क्या है. Tony, his sister Daisy, and their dad are sitting in the lawns of their house. अब जो भी प्ले होता है, नाटक होता है, एक मंच पे होता है. आप लोगों ने नाटक देखा होगा गांव में, एक मंच पे होता है, ठीक है ना. मंच पे जितने काम होते हैं वो ऑन स्टेज होते हैं, और मंच के बाहर जितने काम होते हैं नाटक के वो ऑफ स्टेज होते हैं. सो मंच पे दिखाया जा रहा है कि टोनी है और उसकी एक सिस्टर है डेजी, और टोनी और डेजी के डैड, ये तीनों लॉन्स में बैठे हुए. लॉन्स वो कमरा होता है जिसमें इंसान बैठ के रिलैक्स करता है, तो लॉन्स में बैठे हुए. टोनी इज गॉबलिंग स्वीट्स फ्रॉम अ बॉक्स. टोनी, गॉबल मतलब होता है खा जाना, घोंट जाना. स्वेलो, गॉबल दोनों सिनोनिम है. टोनी
खा रहा है, क्या खा रहा है वो, कुछ स्वीट्स खा रहा है बॉक्स से। डैड इज ट्राइंग टू फिक्स द रिमोट कंट्रोल फॉर द वीडियो गेम। डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डैड के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है और इस रिमोट कंट्रोल ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। सो डैड उस रिमोट कंट्रोल को फिर से फंक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। डेजी इज वॉचिंग टेलीविजन। डेजी क्या कर रही है, डेजी टीवी देख रही है। मम इज इन द किचन, और स्टेज पे मम नहीं है, मतलब मॉम नहीं है, मदर नहीं है। मॉम कहाँ है, किचन में है। ऑफ स्टेज, ऑफ स्टेज मतलब मंच पे नहीं, मंच से बाहर। तो इस सीन में हमने देखा कि कौन कौन क्या कर रहा है। एक्चुअली टोनी इज ईटिंग स्वीट्स, डैड इज ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिमोट कंट्रोल, एंड व्हाट एग्जैक्टली डेजी इज डूइंग, डेजी इज वॉचिंग टेलीविजन। नाउ दीज आर द कैरेक्टर्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आपके ये सब कैरेक्टर हैं, मॉम, टोनी, डेजी एंड डैड। ये 4 कैरेक्टर हैं जिनसे ये मिलकर के ये प्ले नाटक बना है। अब हर लोगों का कुछ ना कुछ, अभी जितने कैरेक्टर्स हैं हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ बोलते हैं। जो भी बोलते हैं उसको आपको यहाँ पे शो किया गया है कि कौन कैरेक्टर क्या बोल रहा है। मॉम क्या बोलती है, डैड क्या कह रहे हैं, टोनी क्या कह रहा है, उसकी जो सिस्टर है डेजी वो क्या कह रही है। तो वो जो भी कहती है ना वो इस डॉट के बाद लिखा हुआ है। सो मॉम अपस्टेयर्स, मंच के बाहर से मॉम, मदर आवाज देती है और कहती है, टोनी कम एंड हेल्प मी विद द डिनर। हेल्प विद द डिनर मतलब हेल्प मी टू प्रिपेयर द डिनर। डिनर प्रिपेयर करने में मेरी मदद करो। तो मॉम टोनी को आवाज देके बुलाती है कि आओ और मेरी मदद करो डिनर प्रिपेयर करने में। तो टोनी का क्या जवाब आता है, वेट ए मिनट मॉम, लेट मी फिनिश माई स्वीट्स। तो टोनी तो एक्चुअली स्वीट्स खा रहा है, तो वो अपने मॉम से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, मैं स्वीट्स खा रहा हूँ, स्वीट्स खाने के बाद मैं आपके पास आता हूँ, आपको डिनर कंप्लीट करने में मदद करूंगा। मॉम कहती है, स्वीट्स, यू शुड बी ईटिंग स्वीट्स बिफोर योर डिनर। अब मॉम बहुत एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक्सक्लेमेशन में कहती है कि तुम अभी स्वीट्स खा रहे हो, डिनर से पहले स्वीट्स खाना अलाउड नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, स्वीट्स क्यों खा रहे हो तुम डिनर से पहले। अब इस पे डैड बोलते हैं कुछ, टोनी वी शैल हैव डिनर टुगेदर, प्लीज कम हियर फर्स्ट एंड हेल्प मी मेंट दिस रिमोट कंट्रोल। अब मॉम भी टोनी को बुला रही है और डैड भी टोनी को बुला रहे हैं, और डैड कह रहे हैं टोनी से कि हम लोग साथ में डिनर करेंगे, हम लोग साथ डिनर करेंगे, एंड कम हियर एंड हेल्प मी फिक्स दिस रिमोट कंट्रोल। यहाँ आओ और रिमोट कंट्रोल को फिक्स करने में, रिमोट कंट्रोल को ठीक करने में मेरी मदद करो। टोनी कहता है, ओके डैड। डैड नाउ हियर होल्ड दिस माइक्रोचिप। अब डैड क्या करते हैं, रिमोट के अंदर से एक चिप निकालते हैं, छोटा सा, माइक्रो मतलब होता है छोटा सा, वेरी स्मॉल, एक छोटा सा चिप निकालते हैं और टोनी के हाथ में दे देते हैं कि इस चिप को तुम पकड़ो। टोनी कहता है, ओके डैड। अब डैड कहते हैं, माइंड यू मीन्स बी केयरफुल, माइंड यू बी केयरफुल, बी केयरफुल विद इट, विदाउट दिस द रिमोट कंट्रोल वोंट वर्क। कह रहे हैं कि इसे ध्यान से अपने हाथ में रखना, अगर ये चिप गायब हो गई, कहीं खो गई, कहीं गिर गई, अगर ना मिली तो इस चिप के बगैर रिमोट कंट्रोल काम नहीं करेगा, तो इसे केयरफुली अपने हाथ में रखो। टोनी कहता है, ओके डैड। Now Tony holds the microchip in one hand and a sweet in the other. एक हाथ में चिप है टोनी के और दूसरे हाथ में स्वीट है उस टोनी के हाथ में। By mistake he puts the wrong hand to his mouth and swallows the chip. By mistake टोनी क्या करता है, एब्सेंट माइंडेड स्टेट में, बगैर कुछ सोचे हुए उस हाथ को अपने मुंह में रख लेता है जिस हाथ में चिप था, वो माइक्रोचिप था। यानी कि टोनी ने माइक्रोचिप को स्वीट समझ करके, मिठाई समझ के खा लिया। नाउ टोनी कहता है, उप्स, इन ए लाउड वेल। वेल मतलब कराहते हुए आवाज में, कराहते हुए आवाज में, दर्द भरी आवाज में कहता है, उप्स डैड व्हाट्स अप। व्हाट्स अप मींस व्हाट हैपेंड, व्हाट्स अप मींस व्हाट हैपेंड। डैड पूछते क्या हुआ। टोनी, चोकिंग। व्हेन यू आर चोकिंग, चोक मींस व्हेन यू आर चोक्ड, यू आर अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्रीदिंग। आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका गला फंस गया और आप ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो गला उसका चोक कर गया है चिप्स खाने की, वो चिप खाने की वजह से, चिप्स नहीं चिप, माइक्रोचिप,
चिप खाने की वजह से टोनी का गला चौक कर गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है और कहता है आई जस्ट swallowed द माइक्रोचिप। इसी तरीके की आवाज में बोलता है आई जस्ट swallowed द माइक्रोचिप, मैंने माइक्रोचिप को खा लिया है। डेजी मोर्निंग, डेजी भी मोर्निंग करते हुए, मोर्निंग मीन्स सैड साउंड क्रिएट करते हुए, उदास भरी आवाज में डेजी कहती है, टोनी की सिस्टर डेजी कहती है ओ टोनी हाउ शैल आई प्ले माय न्यू वीडियो गेम नाउ। अब डेजी कहती है अब मैं अपना नया वीडियो गेम कैसे खेलूंगा, रिमोट कंट्रोल का चिप तो तुमने स्वेलो कर लिया। मम रशिंग इनटू द रूम, अब ये सुन के मम जो किचन में थी वो स्टेज पे आ जाती है, यानी कि कमरे में आ जाती है और ऑडियंस के सामने अब मम भी आ जाती है और कहती है क्विक कॉल इन अ डॉक्टर, जल्दी करो डॉक्टर को बुलाओ। डैड कहते हैं स्टॉप फसिंग। फस मीन्स छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड नहीं होना या छोटी छोटी बातों पे चिंता नहीं करना, मतलब चिंता करना, टू बी एक्साइटेड और टू बी वरीड ओवर स्मॉल यू नो माइन्यूट थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे चिंता करना या छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, इसको फस कहते हैं। सो डैड कहते हैं स्टॉप फसिंग। डैड कह रहे हैं कितनी चिंता करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर को बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इट वोंट हर्ट हिम, ये चिप बहुत छोटा है और इसे हर्ट नहीं करेगा, इसे परेशान नहीं करेगा, इस हर्ट से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चिप से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। It was no bigger than one of his tiny toffees. कह रहे हैं कि ये जो चिप इसने खाया है, इस चिप से तो बड़ा ये टॉफी खा लेता है, ठीक है, चिप बहुत छोटा है, इसके पेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मम कहती है राइट देन कम एंड हैव योर डिनर। अब मम कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ये चिप इसके पेट में, इसके स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है तो ठीक है, डॉक्टर नहीं बुलाते हैं, चलो हम लोग डिनर करते हैं। टोनी व्हाट इज फॉर डिनर, टोनी पूछता है कि डिनर के लिए क्या है। मम जवाब देती है राइस करी डोसा एंड सांभर। मम कहती है कि राइस करी डोसा और सांभर मैंने आज डिनर में बनाया है। डेजी और टोनी दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं ये फूड आइटम सुन के, तो दोनों एक्साइटमेंट में कहते हैं वाह। अब यहाँ पे पहला सीन खत्म होता है। फर्स्ट सीन में आपने क्या देखा, you saw that there is a boy whose name is Tony. Tony is a very naughty boy. He loves eating sweets. So when he was eating sweets, all of a sudden he got a voice from his mother. His mother asked Tony to help him prepare for dinner. But on the other side, Tony is also called by his dad, and dad asked Tony to help him repair the remote control, because the remote control had stopped functioning, stopped working. So dad took out the microchip of the remote control and gave it to Tony to hold it properly, to hold it carefully. Tony had a sweet in his one hand and a chip in his other hand. Tony by mistake swallowed the chip inside, okay, and when he swallowed the chip he felt that his throat, his voice was choking, he was unable to speak. Mother comes on the stage, mother comes into the scene, and mother asks to call for a doctor, to call in a doctor, but father makes sure that nothing wrong was going to happen with Tony, because the size of the chip was so small that it was not going to hurt his stomach, it was not going to disturb him, because Tony used to eat, big toffees, big candies, big sweets, than the size of this microchip. So everything is okay so far, and all are taking dinner. So at this, the first scene ends. Now what exactly the second scene is? Now in scene 2, what happens? Scene 2 is the next day. Next day, the day following the day on which this boy Tony swallowed the microchip. So the next day, Mom, Daisy and Tony are sitting in the lawns. अगले दिन फिर मम, टोनी और डेजी ये तीनों लॉन्स में बैठे होते हैं, पापा नहीं होते हैं। डैड एंटर्स विद अ न्यू रिमोट कंट्रोल, और बाहर से घर में डैड की एंट्री होती है और हाथ में उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल लिया हुआ है, यानी कि डैड ने एक नया रिमोट कंट्रोल लाया है। पुराने वाले रिमोट कंट्रोल का तो चिप खा गया था वो टोनी,
So now the remote control was not functioning, so father brought a new remote control. Now dad says, look, I have got the new remote. देखो मैंने एक नया रिमोट लाया है. Daisy कहती है, great, can I use it? Great means she was very happy to see the remote into the hand of her father. जब उसने डेजी ने फादर के हाथ में रिमोट कंट्रोल देखा तो डेजी भी बहुत खुश हो जाती. क्यों? क्योंकि माइक्रोचिप खा जाने की वजह से डेजी भी अपना वीडियो गेम नहीं खेल पा रही थी क्योंकि रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा था. तो डेजी भी बहुत खुश हो जाती है. नाउ डैड सेज, लेट मी टेस्ट इट फर्स्ट. अब डैड कहते हैं इस रिमोट कंट्रोल को मैं टेस्ट करूंगा टीवी पे कि ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. डेजी, डैड प्लीज टेस्ट इट ऑन माई न्यू वीडियो गेम, पुट्स अ सीडी इन द वीडियो. और डेजी कहती है कि इस रिमोट कंट्रोल को मेरे वीडियो गेम पे टेस्ट अप्लाई कीजिए, इसकी टेस्टिंग मेरे वीडियो गेम्स पे कीजिए. और वीडियो में सीडी डालती है, वो सीडी चलाती है जिसमें वीडियो गेम्स होते हैं. अब डैड रिमोट कंट्रोल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, रिवाइंड, फॉरवर्ड, प्रेस, प्ले, पॉज, ये सब जो बटन्स होते हैं उस बटन की वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि whether all the buttons are working properly or not of the remote control. Now dad says, okay, here goes, I'm pressing play. Dad कहते हैं चलो अब मैं इस रिमोट का प्ले वाला जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ. और वो प्रेस करते हैं प्ले वाले बटन को. टोनी स्टार्ट्स प्लेइंग विद द टॉयज. जैसे ही डैड उस नए रिमोट कंट्रोल के प्ले बटन को प्रेस करते हैं तो टोनी खेलने लगता है. एक्चुअली टोनी had taken the microchip inside his stomach. So now the signal of the new remote was also being received by the microchip inside the belly, inside the stomach of Tony. समझ रहे हैं कि नया जो रिमोट कंट्रोल आया है उस रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल निकल रही है उसका प्रभाव टोनी के पेट में जो चिप है उस पर भी पड़ रहा है. तो जैसे ही पापा नए रिमोट के प्ले बटन को प्रेस करते हैं टोनी खेलने लगता है. वीडियो गेम तो जो सीडी में चल रही है, अब जो टीवी में चल रही है वो तो काम कर ही रहा है, बट उस रिमोट के सिग्नल का असर टोनी पे भी होता है. टोनी स्टार्ट्स प्लेइंग विथ हिज टॉयज. नाउ डेजी देखती है, डेजी लुकिंग एट टीवी, डैड इट वर्क्स. डेजी कहती है टीवी पे देखते हुए कि डैड ये काम कर रहा है, यानी कि रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है. डैड कहते हैं नाउ आई एम प्रेसिंग स्टॉप. अब डैड स्टॉप बटन प्रेस करते हैं रिमोट कंट्रोल का. अब टोनी क्या करता है, जैसे वो स्टॉप बटन प्रेस करते हैं रिमोट कंट्रोल का, टोनी रुक जाता है, वो नहीं खेलता है. डेजी लुकिंग एट टीवी, डैड दैट टू वर्क्स. दैट मीन्स टोनी कह रहा है डैड देखिए टोनी भी काम कर रहा है इस रिमोट कंट्रोल के बटन से. आप रिमोट कंट्रोल का जो बटन है प्ले बटन, स्टॉप बटन, जब आप इसे प्रेस करते हैं तो टोनी पे इसका असर हो रहा है. डेजी लुकिंग डैड नाउ आई एम प्रेसिंग फास्ट फॉरवर्ड. रिमोट कंट्रोल में एक बटन होता है फास्ट फॉरवर्ड, जिससे वीडियोज होती है काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है. presses the button, Tony stands up, starts running around the room. जैसे ही पापा फास्ट फॉरवर्ड बटन प्रेस करते रिमोट कंट्रोल का, टोनी काफी तेजी से पूरे कमरे में वो दौड़ने लगता है, फास्ट फॉरवर्ड करने लगता है. डेजी लुकिंग एट टोनी. डेजी टोनी की तरफ अब देखती है और कहती है डैड. अब डैड कहते हैं नाउ आई एम प्रेसिंग रिवाइंड. रिवाइंड मतलब पीछे, वीडियो को पीछे करना, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में वीडियो को ले जाना. तो पापा क्या करते हैं, अब रिवाइंड बटन प्रेस करते हैं. प्रेसेस द बटन, टोनी स्टार्ट्स रनिंग बैकवर्ड्स अराउंड द रूम. जैसे वो रिवाइंड बटन प्रेस करते हैं तो वीडियो तो पीछे की तरफ जा ही रही है, टोनी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में कमरे में जाने लगता है. जब अभी आगे बढ़ रहा है, अब वो पीछे की तरफ जाने लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है जब पापा रिवाइंड बटन प्रेस करते हैं. यानी कि रिमोट कंट्रोल
का जो कमांड है, जो सीडी पे जाना चाहिए, उसका असर किस पे भी हो रहा है? टोनी पे भी हो रहा है। यानी कि टोनी की सारी एक्टिविटीज अब किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? रिमोट के द्वारा कंट्रोल हो रही है। टोनी जो भी कर रहा है, खेल रहा है पूरे घर में, तेज दौड़ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है, रुक जाता है, ये सारी एक्टिविटीज कहां से कंट्रोल हो रही है? रिमोट से कंट्रोल हो रही है। और किस पे इस कंट्रोल का इंपैक्ट आ रहा है? किड पे आ रहा है। किड मतलब टोनी, बच्चा। डेजी, ओके, डेजी, डैड, फिर डैड कहते हैं एंड नाउ आई एम प्रेसिंग सर्च। रिमोट में एक सर्च बटन होता है जिससे आप अपने चैनल्स को सर्च कर सकते हैं, और जिस चैनल को आपको देखना हो उस चैनल पे आप प्रेस बटन करेंगे, वो चैनल आपको आपके स्क्रीन पर फ्लैश होने लगता है। तो डैड कहते हैं अब मैं सर्च बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही वो सर्च बटन प्रेस करते हैं, टोनी स्टॉप्स रनिंग एंड स्टार्ट्स लुकिंग फॉर समथिंग। टोनी रुक जाता है, दौड़ना बंद करता है, और फिर कुछ चीज़ों को कमरे में घर में कुछ चीज़ों को ढूंढने लगता है, सर्च करने लगता है। डेजी लुकिंग एट टोनी, डैड, ओ डैड, लुक। अब डेजी काफ़ी हैरान हो जाती है, वो काफ़ी चिंतित हो जाती है कि फादर इज प्रेसिंग द बटन हियर एंड द एक्शन इज बीइंग डन बाय टोनी। पापा यहाँ रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर रहे हैं और एक्शन कौन कर रहा है? टोनी कर रहा है। तो डेजी काफी हैरान हो जाती है देख करके, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो निकलती है सिग्नल, वो टेलीविजन चैनल्स पे टेलीविजन को इम्पैक्ट करते हैं। टेलीविजन के वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, पॉज होते हैं, ठीक है ना, चैनल चेंज होते हैं, लेकिन इन सारे सिग्नल्स का असर टोनी पे हो रहा है। जब भी फादर कोई बटन प्रेस करते हैं, उसका असर टोनी पे हो रहा है। डैड कहते हैं व्हाट इज इट? क्या है? डेजी कहती है लुक एट टोनी, टोनी को देखिए पापा। डैड कहते लुकिंग एट टोनी, ही लुक्स ऑल राइट टू मी। डैड कहते हैं सही तो है, क्या प्रॉब्लम है टोनी में, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? डेजी कहती है वेल ही इज नॉट, नहीं पापा वो ठीक नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग विद टोनी, टोनी के साथ कुछ गड़बड़ है। when you press play he plays। जैसे ही आप यहाँ रिमोट में प्ले प्रेस करते हैं, प्ले बटन प्रेस करते हैं, रिमोट टोनी खेलने लगता है। एंड when you press stop, जैसे आप रिमोट का स्टॉप बटन प्रेस करते हैं, टोनी रुक जाता है। एंड when you press, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं अगला बटन, तो फिर उस बटन के कमांड के हिसाब से टोनी में एक्टिविटीज आने लगती है। डैड कहते हैं ओह नो। अब डैड भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि इट मस्ट बी द माइक्रोचिप ही स्वैलोड यस्टरडे। हो सकता है कि जो माइक्रोचिप टोनी ने कल स्वैलो कर लिया था, घोट लिया था, उसका असर हो रहा है इस टोनी के ऊपर। यानी कि रिमोट से जो सिग्नल जा रही है उसका असर उस चिप पे भी पड़ रहा है, जो चिप टोनी के स्टोमक में, पेट में है, जिसे कल उसने खा लिया था। वी मस्ट गेट इट आउट, हमें इसे निकालना पड़ेगा, इस चिप को टोनी के बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। क्विक लेट्स रश हिम टू हॉस्पिटल। इसे कहाँ ले जाया जाए? हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब मॉम आ जाती है बीच में, और मॉम कहती है वेट, रुको। बोथ लुक एट मॉम, दोनों बेटी और फादर, डॉटर और फादर दोनों मॉम की तरफ देखने लगते हैं। मॉम कहते हैं कि he might behave better with that microchip in him, let me try। मॉम कहती है रहने दो, इसके बॉडी में ये माइक्रोचिप रहने दो, हो सकता है इस माइक्रोचिप की वजह से ये बेटर बिहेव करे, अच्छे तरीके से बिहेव करे, सारे काम इसे हम रिमोट कंट्रोल से कंडक्ट करवा सकते हैं, रिमोट से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, रहने दीजिए, इसके बॉडी से चिप निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहती है माँ लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दीजिए। और वो कुछ एक्सपीरियंस करती है, देखना चाहती है कि क्या इस रिमोट का सही में असर टोनी पे होता है कि नहीं, क्या टोनी वही काम करता है जो ये रिमोट कहता है करने के लिए, रिमोट का सिग्नल ही टोनी की एक्टिविटीज़ डिसाइड करता है। तो मॉम इसे चेक करना चाहती है। शी टेक्स द रिमोट कंट्रोल एंड प्रेसेस द बटन। टाइम फॉर बेड टोनी।
पापा के हाथ से मॉम रिमोट कंट्रोल ले लेती है और एक बटन प्रेस करती है और कहती है टाइम फॉर बेड टोनी। टोनी अब सोने का वक्त आ गया है। जैसे बटन प्रेस करके बोलती है मम्मी कि टाइम फॉर बेड टोनी, देखिए टोनी पे क्या असर होता है। टोनी रन्स आउट ऑफ द रूम, टोनी उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वी हियर द साउंड ऑफ फीट अपस्टेयर्स, हमें सुनाई देती है कि सीढ़ियों से चढ़ते हुए टोनी अपने कमरे में जा रहा है। एंड देन ब्रशिंग ऑफ टीथ एटसेट्रा, और उसके बाद अपने कमरे में जाने के बाद ब्रशिंग कर रहा है और भी कुछ काम कर रहा है। टोनी शॉपिंग ऑफ स्टेज, स्टेज के दूसरे ऑफ स्टेज से, स्टेज के बाहरी साइड से टोनी शाउट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को धो लिया है। आई पुट ऑन माई पजामा, पुट ऑन मतलब पहन लेना, मैंने पहन लिया अपना पजामा। एंड गॉट इनटू द बेड, और मैं बेड पे जा चुका हूँ, यानी कि मैं अब सोने वाला हूँ। गुड नाइट मॉम, और गुड नाइट कहते हुए वो सोने चला जाता है। मॉम क्या कहती है? अमेज्ड। मॉम टोनी के इस एक्शन को देख के अमेज्ड हो जाती है कि वाओ, फाइनली एक ऐसा चीज मिल गया जो अब टोनी को सुधार सकता है। टोनी सारे काम पंक्चुअली करेगा, ऑन टाइम करेगा, मेरी बातें भी मानेगा। और वो चीज क्या थी? रिमोट। मॉम कहती है isn't that strange, क्या ये अद्भुत नहीं है, क्या ये अजीब नहीं है? Usually it takes us shouting at him, मॉम कहती है कि यूजुअली अक्सर घंटों लग जाते हैं टोनी से कोई काम करवाने में, और अभी एक बटन प्रेस किया और विद इन मिनट्स टोनी ने ब्रशिंग भी कर ली, पजामा भी पहन लिया, वो बेड पे सोने भी चला गया और फाइनली वो सो भी गया है। तो बहुत स्ट्रेंज है, पहले मुझे घंटों चिल्लाना पड़ता था इस पे कुछ इससे काम करवाने को, या फिर ये कोई काम करे इसके लिए मुझे घंटा चिल्लाना पड़ता था, लेकिन अभी एक बटन प्रेस करने से ये सारे काम कर रहा है। वाओ, इट्स रियली स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब बात है। डेजी दैट इज ग्रेट, डेजी कहती है हाँ ये बहुत अच्छी बात है। आई कैन प्रेस स्टॉप व्हेन ही टीजेस मी, अब डेजी कहती है कि जब कभी भी टोनी मुझे टीज करेगा, टीज मीन्स परेशान करना, बॉदर करना, डिस्टर्ब करना, परटर्ब करना, डेजी कहती है कि अब जब कभी भी टोनी मुझे टीज करेगा, परेशान करेगा, डेजी कहती है कि अब जब कभी भी मुझे टोनी परेशान करेगा, टीज करेगा, मैं स्टॉप बटन प्रेस कर दूंगी। यस, स्टॉप बटन प्रेस कर दूंगी और वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो मुझे टीज नहीं करेगा, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। और डैड कहते हैं एंड हिज टीचर कुड यूज इट टू मेक हिम बिहेव प्रॉपर्ली, और घर में ही नहीं, पापा कहते हैं इस रिमोट का टोनी के लिए स्कूल में भी यूज किया जा सकता है। स्कूल से टोनी के बारे में हमेशा कंप्लेंट्स आती रहती है कि टोनी क्लास में टीचर्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता है, रूड बिहेव करता है, नॉटीनेस शो करता है। अब टीचर्स को भी रिमोट कंट्रोल अगर मिल जाए, वो भी इससे प्रॉपर्ली बिहेव करवा सकते हैं। मॉम कहती है टेरिफिक, टेरिफिक मीन्स ब्रिलियंट, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। we have got a remote control kit, और मॉम कहती है फाइनली हमें एक रिमोट कंट्रोल किट मिल गया है। एक ऐसा किट, एक ऐसा बच्चा जो टोनी है, जिसकी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होगी किससे? रिमोट से। मुंह से बोल के नहीं, रिमोट ही उसकी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कर देगा। Now he will make no trouble in the house or at the school. अब वो घर पे कोई शरारत नहीं कर पाएगा, अब वो स्कूल में किसी तरह की कोई शरारत नहीं कर पाएगा, किसी तरह की कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये प्रॉपर्ली बिहेव करेगा, घर में भी, स्कूल में भी, घर में मेंबर्स ऑफ द फैमिली के साथ, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्टाफ के साथ, सबके साथ ये प्रॉपर्ली बिहेव करेगा with the help of a remote that will control the kid Tony। ठीक है ना? इस तरीके से आपका ये प्ले एंड होता है, प्ले खत्म होता है। फाइनली we saw that Tony how Tony finally transformed from a human being to a remote control kid। So this way this particular chapter over, and in the next video we shall look into
the vocabulary part and difficult words. We shall look into the synonyms, antonyms, and the sentence formation based on that particular word. अभी in the meanwhile आप इस पूरे चैप्टर को सेल्फ स्टडी करें, जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें. आप कैसे करें मैं बताता हूँ आपको. आप भी अपने घर में कोई 4 कैरेक्टर्स ले लीजिए, या फिर 4 दोस्त ले लीजिए, या एक आप मॉम को ले लीजिए अपने घर में, आप अपने फादर को ले लीजिए और अपने सिस्टर को ले लीजिए, और एक आप हो गए. फादर ने जो डायलॉग बोले हैं वो फादर को कहे बोलने के लिए, मॉम ने जो लाइन बोली है वो अपने घर में मॉम को कहे बोलने के लिए, सिस्टर डेजी ने जो डायलॉग कहा है वो अपने सिस्टर को कहे बोलने के लिए, और जो टोनी ने डायलॉग बोला है वो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं. दिस वे यू कैन improve, you can make an environment of spoken English. ठीक है, चलिए, see you in the next video. Thank you.